students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. This is a video related to the revision for essay 1 exam and this is my session number 2 for the revision. In previous session, we have already discussed regarding chapter number 1, Earth, its surface and movement, chapter number 2, continents and ocean, chapter number 3, India physical and chapter number 4, India political. In today's session, I will brief you regarding chapter number 5, sources of history and timeline, chapter number 6, the story of the earliest people, chapter number 7, fire, farming and the wheat. So, let us begin with chapter number 5. In chapter number 5, firstly I taught you what do you mean by sources of history. Sources of history क्या होता है? Now, anything, you may see a photograph of a time when you were a baby, festival celebrated, all these things are obtained from your home. आपके घर में से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. By looking into these things, you can recall anything which was there in the past. Past के related आपको informations मिलेगी. For example, photographs if you see when you were born, that time's photograph when you see, you will understand that who were all there when you were born or when your first birthday was there, who were all present, how did they celebrate. All these informations you will get through that photograph. So, anything through which you get information related to the past, like when was it celebrated, where was it celebrated, how was it celebrated, all these informations you will get through that thing. So, that thing is called a source of history. तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? Source of history. History, as we know, is a study of the past. We can learn about the past from various sources of history. अलग अलग sources of history होते हैं, like utensils, मतलब के जो vessels आप use करते हो cooking के लिए, eating के लिए, उसे हम utensils कहेंगे. Weapons, then paintings, old books, then papers and manuscripts. Now, what are manuscripts? Yes, any handwritten book which are very old and which give you information regarding the past are called manuscripts. Very old books which were written by hand are called manuscripts. So, old seal, old coins, ये सारे के सारे जो चीज़ें जिससे हमें past के related information मिलती है, ये sources of history है. कौन सी चीज़ें? Yes, utensils, old toys, old clothes, all these are giving information regarding the past, so they are called sources of history. Then timeline. Timeline के बारे में मैंने क्या कहा था? Anything that is placed in a sequence from the earliest to the latest. जो पहले start हुआ था उसको सबसे पहले लिखेंगे. Next what happened, next what happened, next what happened. उसे sequence में जो हम arrange करते हैं ना, तो उसे हम sequencing कहेंगे. Timeline क्या है? Yes, timeline is arranging the important events according to the time in which they had happened. कौन से टाइम में क्या हुआ था उसको हम arrange करके लगाते हैं, तो उसे हम कहेंगे timeline. Right now हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं. आज के ज़माने में हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है एंड इट वाज फॉलोड बाय यूरोपियंस. यूरोप के लोग ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियंस ज़्यादा थे, तो दे कंसिडर, क्योंकि क्रिश्चियंस के गॉड कौन है? जीसस. तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी जीसस के बर्थ के बाद से कंसिडर होता है, तो उसे हम CE मतलब कॉमन एरा कहेंगे. द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज कॉमन एरा एंड उसमें हम वी स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे CE लगाएंगे. दैट मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कॉमन एरा.
एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले भी हिस्ट्री थी, बिकॉज हिस्ट्री इज वेरी ओल्ड। तो उस पीरियड को हम BCE में, और वो काउंटिंग बैकवर्ड होता है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉट एवर द टाइम वॉज है, इट इज काउंटेड बैकवर्ड, उसे बैकवर्ड काउंट करेंगे और उसके आगे हम BCE लगाएंगे, मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। नाउ दिस थिंग वी लर्नड इन द टाइमलाइन। सो नाउ इन दिस चैप्टर, दैट इज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री एंड टाइमलाइन, इस चैप्टर में हमने 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में डिस्कस किया। वन इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कौन कौन से सोर्सेस है हिस्ट्री के? यूटेंसिल्स, वेपन्स, पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, देन रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड द पैलेसेस। पुराने बिल्डिंग्स या पुराने पैलेसेस भी आज हम देख सकते हैं, तो इसे भी हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। सो ऑल दिस थिंग्स, then old furniture, old toys, old clothes, old photographs, all these things are sources of history. Means anything which provide you information regarding the past is called source of history. Then second thing which we discussed, main thing in this chapter was regarding timeline. Timeline, there are 2 main parts, one is BCE and one is CE. BCE मतलब the period of history which was before the birth of Jesus Christ is called BCE, मतलब before common era, and CE is considered as the period after the birth of Jesus Christ, so it is called common era and before common era. Clear? So these things we learned in chapter number 5. Now coming to chapter number 6, the story of the earliest people. Now in this chapter, first thing we learned that our history, mankind's history is very very old, but initially, as I told you when I discussed regarding this chapter, mankind was not looking the way he looks like now. आज हम जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं थे। Initially he looked like ape. Ape is somewhat similar to monkeys. So initially he was like that. Slowly and gradually with the time passing, he started standing on his 2 feet. 2 feet पर खड़े होना start हो गया. The tail disappeared, his face became changed, and then slowly and gradually जो हम आज दिख रहे हैं वैसे इंसान का स्ट्रक्चर बन गया, करेक्ट। बट इनिशियली ही लुक लाइक एप। अर्ली ह्यूमन बींग्स वेर कॉल्ड होमिनिन्स, उसे हम क्या कहते थे? होमिनिन्स। द अर्लीस्ट होमिनिन रिमेन हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। ये माना जाता है कि सबसे ओल्ड होमिनिन का जो रिमेन है, रिमेन्स मतलब एनीथिंग विच इज belonging to the past but it is still there, it is called remains. So earliest hominin का remain जो है वो अफ्रीका में पाया गया है, and the modern human being appeared on the earth for near about 200,000 years ago. जो modern human being है जैसे हम दिख रहे हैं वो nearly 200,000 ईयर्स के पहले अर्थ के ऊपर उनका अपीयरेंस हुआ। उससे पहले जो भी था वो एप्स की तरह दिखते थे। किसकी तरह? एप। एप का मैंने आपको पिक्चर शेयर करके दिखाया था, समवॉट रिलेटेड टू मंकी। देन टॉकिंग अबाउट द टूल्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स का जो सबसे पहला एज था उसे हम स्टोन एज कहते हैं। वाई? Because they used all the tools which were made of stones, क्योंकि ये स्टोन से बनी चीजें ही यूज करते थे। Initially they were hunters gatherers. Hunters gatherers थे early human beings. They did not know how to cook, how to
live anything. They did not stay in any house. They lived in caves, took shelter under the big stone or a big tree, etc. तो ऐसे ही wanderer की तरह इधर उधर घूमते रहते थे. To keep themselves protected from wild animals, वो उनको मार डालते थे. बट कैसे मारते थे? It is very difficult for anybody to kill them with their hand. So वो जो sharp stones होते हैं ना, उनको कलेक्ट करके अपने पास रखते थे खुद को सेफ रखने के लिए. Slowly and gradually he learned कि इन stones को अगर एक दूसरे के साथ रब करे, okay, if they strike them or rub them against each other, वो stone sharp बन जाता है. तो उन्होंने अपने आप से पहले sharp stone को ढूंढते थे, अब sharp stone बनाना सीख गए. कोई भी stone लेते थे और अपने आप से उसे sharp कर लेते थे. Then they tied that stone to a stick. Okay, एक stick के साथ बांध देते थे उस stone को, और किसी भी animal को hunt करना है तो from a distance they used to kill the animals. दूर खड़े होके उस पर उस stone को फेंक के, उस लकड़ी को फेंक के hunting कर देते थे. So it is now less dangerous बन गया. So all these things we learned in the tools. Then life of early people, life कैसी थी? He was one hunter and gatherer. थे. जो men थे वो hunters थे. Women and children were gatherers. वो जहाँ पर होते हैं वहाँ आजू बाजू की सारी चीज़ें गैदर करके ले लेते थे और अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए रख रहे थे. Once the things are over in that place, then they shifted to the new place. इस तरह के थे. Then he was living in caves. Why he was living in caves? To protect himself from heat, cold, rain, wild animals, etc. तो इसलिए caves में रहते थे, गुफा के अंदर. And how did they cover their body? They covered their body with fur or animal skin. Fur से, animal skin से इस तरह से अपने आप को बॉडी को कवर करते थे and kept themselves warm, और खुद को वार्म रखते थे. Then they did not have language. Language नहीं थी बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. तो they talked to each other or they indicated each other to have to inform something. They used hand movements or signs. हैंड मूवमेंट्स या साइंस को यूज करते थे, एक दूसरे को इशारा करके कुछ बताना है तो बताते थे. देन ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट. अर्ली ह्यूमन आर्टिस्ट भी थे. क्यों? क्योंकि वो जिन केव्स में रहते थे उन केव्स की वॉल्स के ऊपर उन्होंने अपने हंटिंग के सीन सारे ड्रॉ करके लगाए थे. एनिमल्स के सीन थे, किस तरह के एनिमल्स होते थे, किस तरह से वो हंटिंग करते थे, वो सारे सीन्स को उन्होंने उन केव्स की वॉल्स पर ड्रॉ करके रखा था. देन दे कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन नेचर. नेचर के ऊपर ही डिपेंडेड रहते थे. अगर उनको ठंडी लग रही है तो भी नेचर पर डिपेंडेड, गर्मी लग रही है तो भी नेचर के ऊपर डिपेंडेड. दे डिड नॉट हैव एनीथिंग आर्टिफिशियल और मैन मेड. तो उनको थंडर, लाइटनिंग, रेन, इन सारी चीज़ों से डर भी लगता था. दे वर स्केयर्ड ऑफ थंडर, लाइटनिंग, रेन, एवरीथिंग, एंड दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम दीज थिंग्स लेटर ऑन. नाउ लेटर जैसे जैसे टाइम जाता गया उन्होंने फायर का, व्हील का सब इन्वेंशन किया और अपने आप को, अपनी लाइफ को और इजी बनाते गए. तो इन दिस चैप्टर वी लर्न रिगार्डिंग टू मेन थिंग्स. वन इज व्हाट वर द टूल्स, सेकेंड इज यूज ऑफ टूल्स. टूल्स को कैसे यूज करते थे. टूल्स में कौन कौन से थे? सिंपल पीस ऑफ स्टोन एंड वुड विद द शार्प एज एंड बोन्स. कभी कभी एनिमल, जो मरा हुआ एनिमल है उनके बोन्स को भी यूज करते थे एज अ टूल. देन यूज ऑफ टूल. इन टूल्स को यूज कहाँ करते थे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हंटिंग के लिए, देन फिशिंग के लिए, देन डिगिंग. डिगिंग मीन्स जमीन को खोदना है तो वो इसको यूज करते हैं. देन स्यूइंग. स्यूइंग मीन्स स्टिचिंग. कुछ भी दो लीव्स को या कुछ जॉइंट करना है तो स्यूइंग करते थे इनसे.
तो दीज वर द यूजेस ऑफ टूल्स. देन लाइफ ऑफ अर्ली मैन में क्या था? दे लिव्ड इन केव्स. द क्लोथ्स दे वेयर वाज फर एंड एनिमल स्किन. देन ही वाज हंटर गैदरर. देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन कैसे करते थे? बाय हैंड मूवमेंट, साइंस एंड हंटिंग के वक्त एनिमल्स के साउंड निकालते थे बिकॉज लैंग्वेज तो थी नहीं. सो ऑल दिस थिंग. देन केव पेंटिंग्स बनाते थे. इन दैट दे शोड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स. एंड फियर ऑफ थंडर, रेन एंड लाइटनिंग. वो थंडर से, रेन से, लाइटनिंग से, इन सारी चीज़ों से डरते थे क्योंकि स्काई में जब लाइट फ्लैश होती है तब डर लगता था कि ये क्या हो रहा है. साउंड आता है थंडर का तो डर जाते कि ये साउंड कैसे आया. रेन जब आती है तो वो सोचते हैं कि ऊपर स्काई में से पानी कैसे गिर रहा है. So they were scared of all these things. These points we learned in this chapter. That is chapter number 6. Now coming to chapter number 7, fire, farming and the wheel. इस चैप्टर में सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कि वो हंटर गैदरर्स से हंटिंग करते थे एंड दे एट रॉ मीट. जो भी मिलता था वो रॉ कच्चा खा जाते थे. देन स्लोली दे डिस्कवर्ड फायर. फायर के बारे में डिस्कवर किया. डिस्कवर मीन्स जो ऑलरेडी दुनिया में होता है मगर हमें पता नहीं था, अब पता चल गया तो उसे हम डिस्कवर कहेंगे. क्या कहेंगे? डिस्कवर. So they discovered fire. Now how did they discover fire? First thing, ये ऐसा हो सकता है कि लाइटनिंग, कभी कभी लाइटनिंग जब होती है बारिश के टाइम में, करेक्ट, समटाइम्स देर इज ओनली लाइटनिंग एंड देर इज नो रेन कमिंग. लाइटनिंग होती है मगर बारिश नहीं होती है. तब क्या होता है? वो लाइटनिंग जब किसी पेड़ पर गिरती है तो उस पेड़ में आग लग जाती है, करेक्ट. तो शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने लाइटनिंग देखा और आग लग गई. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन समर में बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से ड्राई लीव्स या ग्रास में आग लग गई एंड द फायर स्टार्टेड. या तो ऐसा भी हो सकता है कि व्हेन दे वेर रबिंग टू स्टोन्स और स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर, व्हाई? जस्ट टू शार्पन देयर एज. उनके एजेस को शार्प करने के लिए वो जब उनको घिस रहे थे स्टोन्स को तब उसमें से जो स्पार्क निकलता है वो निकल के ड्राई लीव्स या ग्रास पर गिरा होगा और फायर स्टार्ट हो गई होगी. तो इस वजह से भी फायर हो सकती है. बट एक्सीडेंटली फायर स्टार्टेड एंड दे फाउंड दैट इनिशियली दे वर स्कैर्ड ऑफ फायर. स्टार्टिंग में डर लगता था फायर से, बट स्लोली they found that this is very useful because fire gave them heat, gave them light, it kept them protected from animals. Then they also discovered कि जो फायर में कुक हुआ फूड या मीट होता है, it is much easier to be chewed and tasty. वो कुक्ड फूड जो है, मीट जो है या कुछ भी, वो टेस्टी भी होता था एंड च्यूइंग के लिए इजी भी होता था. ओके. देन अब वो क्या करने लगा? पहले एक्सीडेंटली हुआ था. नाउ दे पर्पसली स्टार्टेड टू स्ट्राइक द स्टोन्स टुगेदर एंड स्टार्ट द फायर. अब वो पर्पसली दो स्टोन्स को घिस के फायर करना सीख गए थे. देन बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एक्सीडेंटली क्या हुआ था? स्टार्टिंग में वो जो भी फ्रूट्स खाते होंगे उनमें से जो सीड निकलते हैं, they used to throw it. Then they discovered that the seed which they threw on the soft land, it started sprouting and slowly it became a new tree. So now he discovered that because of this seed, a new tree or new plant can be grown. So for his convenience, because he wanted to eat that, he purposely saw that उन्होंने उसको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया सीड को. और नाउ इफ ही वांट्स देम टू स्प्राउट, ही हैज टू गिव देम वाटर. पानी डालना पड़ेगा. सो उन्होंने क्या किया? जहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल है उन प्लेसेस पर रहना स्टार्ट किया और उन सीड्स को ग्रो करते थे अपने यूज के लिए. और ये जो है एरिया है जो उसे हम क्या कहेंगे?
फर्टाइल क्रेसेंट कहेंगे। फर्टाइल क्रेसेंट इज द एरिया इन विच दे स्टार्टेड लिविंग। और धीरे धीरे ऐसे ग्रुप्स में जैसे रहने स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वहाँ छोटा सा विलेज बन गया। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि सारे के सारे लोग इफ दे आर डूइंग फार्मिंग देन टू मच ऑफ फूड विल बी ग्रोन, बहुत सारा फूड बन जाएगा, एक्सेस ऑफ फूड, सरप्लस अमाउंट, सरप्लस मीन्स मोर देन नीडेड, जितना नीड है उससे ज्यादा का फूड ग्रो कर दिया। तो अब क्या करते थे, अब कुछ लोग फार्मिंग करते थे एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल हु हैड एक्स्ट्रा टाइम दे स्टार्टेड डूइंग सम न्यू वर्क। कैसा वर्क करते थे, जैसे कि पॉटरी, पॉट्स बनाने लगे, मिट्टी के पॉट बनाने लगे, विच दे स्टार्टेड टू बेक इन द सन और इन द फायर, फायर में बेक करते थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर इन पॉट्स के अंदर एक्स्ट्रा जो फूड उन्होंने बनाया वो स्टोर करते थे, और जो पॉटर्स थे उनके साथ ये चीज़ें भी एक्सचेंज करते थे। पॉटर्स से पॉट लेकर उनका जो एक्स्ट्रा फूड उन्होंने ग्रो किया वो पॉटर को दे देना, तो गुड्स एक्सचेंज हो गए। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे, एनिमल्स को पालने लगे, शीप, गोट, काव, इन सब एनिमल्स को। तो इन एनिमल्स में से उन्हें मिल्क, मीट ये सब मिलता है ना, तो वो उनको भी एक्सचेंज करने लगे एक दूसरे के साथ। सो इन दिस वे दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, सेटल्ड लाइफ रहने लगे। देन कमिंग टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब ये क्योंकि गुड्स को एक्सचेंज करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत एक्सेस गुड्स है तो बाजू के विलेज में जाकर उन्हें एक्सचेंज करते थे, बट हाउ विल दे कैरी देयर थिंग्स टू द अदर प्लेस। तो इनिशियली वो एनिमल्स का यूज करते थे, बट एनिमल्स के ऊपर अगर खुद भी बैठ जाएगा, गुड्स को भी लगा दे, तो इट विल बिकम वेरी हैवी फॉर एनी एनिमल टू ड्रैग इट। तो उन्होंने क्या किया, दे ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर के पास ट्री लगा था, द ब्रांच ऑफ द ट्री, इट एक्सीडेंटली फेल इन द वाटर एंड दे सॉ दैट इट वाज फ्लोटिंग इन द वाटर। उन्होंने देखा कि अच्छा ये ट्री में से जो ब्रांच गिरती है वो अंदर सिंक नहीं होती है पानी में, वो फ्लोट होती है। सो देन ही गॉट एन आइडिया। उन्होंने इन लॉग्स ऑफ वुड, वुड के बड़े बड़े लॉग लिए और उनको एक दूसरे से टाई कर दिए, बांध दिए, आई एम सॉरी, एंड देन उसको टाई करने के बाद एक राफ्ट बन जाता है। ऑन दैट राफ्ट दे यूज टू कैरी देयर गुड्स एंड दे यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू ट्रेवलिंग करना सीख गए राफ्ट के हेल्प से। बट वन डे ही सॉ दैट फ्रॉम मे बी अ स्लैंटिंग एरिया लाइक हिल के ऊपर, हिल का जो स्लोप होता है वो स्लैंट होता है, वहां से उन्होंने देखा कि दिस लॉग ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट डाउन और कैरिंग इट ऑन द बैक, अगर उनको वहां ऊपर से छोड़ दे तो वो रोल होते होते, गोल गोल घूमते घूमते अपने आप नीचे तक आ जाएगा। तो ही डिस्कवर्ड एनीथिंग विच इज राउंड कैन बी रोल्ड इजीली। तो जो भी राउंड चीज है उसे वो इजीली रोल करके ले जा सकते हैं। सो देन व्हाट ही डिड, ही मेड अ कार्ट, उन्होंने कार्ट बनाया एंड ही फिक्स दीज लॉग्स ऑफ राउंड लॉग्स ऑफ वुड अंडर इट। तो उस राउंड लॉग ऑफ वुड को उसके नीचे फिक्स कर दिया। तो अब क्या हुआ, उसको पुल करने में इजी होगा क्योंकि ये नीचे से राउंड है। सो ही डिस्कवर्ड द व्हील इन दैट वे। सो नाउ द ट्रैवल ऑन लैंड ऑल्सो बिकेम ईजियर, करेक्ट। सो in this chapter we learned three main things, that is discovery of fire. Fire, it kept them warm, it kept the wild animals away and it also helped for cooking food. Then we learned in this chapter regarding the farming. So from hunter gatherers they became farmers. hunter gatherers थे उनमें से अब वो farmers बन गए। and formation of village, क्योंकि वो सेटल्ड होने लगे तो नाउ विलेज का फॉर्मेशन होने लगा। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ट्रैवलिंग एंड कैरिंग हैवी लोड्स बिकेम इजियर एंड फास्टर। हैवी लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना और खुद का ट्रैवल इजी हो गया बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील। सो
here we come to the end of revision part for the essay 1 exam. essay 1 exam के लिए पूरा revision हमने इन 2 sessions में ख़त्म कर दिया है. All 7 chapters I have highlighted in these sessions. I am sending a PDF along with this video in which you are having a paper which is according to your paper style. In that paper I have already ticked the correct answers, but I want you to write the questions and then learn and write the paper and then tally it with the answers given in my paper, so that the revision work goes smooth. Okay? I hope that you will do well in the exam. All the best. Bye.